My dear students, boys and girls, there are two advantages of my stay at home. First, that I'm away from the cruel and acrimonious clutches of coronavirus. Second, I want to perform positive and constructive job for my energetic and vibrant youth. So today, I would like to start SAT 1. SAT 1 for LUMS Lahore University and American University, particularly Stanford, Harvard, MIT, and Canadian University, McGill, Canada. Is that clear? So let us analyze. There are two kind of tests: writing and language test. So today we are trying to have a writing test. Is that clear? Now let us start that of the writing test. The passage is very popular passage. In this context, you must remember one thing, that I try my level best to give you a lot of information. It's a kind of informative and with very important according to your examination point of view. So let us start SAT 1 writing test. The passage start: remembering Freud or Sigmund Freud. He is Australian. Austria. He was a man of Austria, and he got popularity in the field of psychology. Now let us study his what he says about that of psychology. So he is of the opinion that I would like to read. Psychology has grown. Psychology has grown momentously over the past century. Is that clear? Largely, sorry, due to the influence of Sigmund Freud. Is that clear? मैं बड़ी आस्ता आस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको देखते जाइएगा. A pioneer of the field, full stop. This Asturian, he belonged to Asturia. Is that clear? This Asturian born neurologist founded the practice of psychologists, and began scientific study of the unconscious mind. Is that clear? Now question number 24. Since his career, which ended in the mid 17th century, Freud has remained a common. It's a word common. It's clear. Cultural and scientific reference point. Now there are two questions over here. There are two questions come over here. Now let us analyze the option. In the option there are four questions, four options. Is that clear? Now we are doing 23. The first one is no change, कोई तब्दीली नहीं, और B continued, और C spearheaded, और D led to. अब चार ऑप्शन हैं और हमारा जो है क्वेश्चन है, we are trying to have number 23. Is that clear? Number 23. अब मैं नंबर 23 पर आ जाता हूँ. This is number 23. Is that clear? Underline is began. Is that clear? Now there are four options. There are four options. And what are the four options?
हम 23 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला है नो चेंज, दूसरा है कंटिन्यूड, तीसरा है स्पीयर हेडेड और डी है लेड टू। अब आपने शुरू में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट सेट कर रहे हैं, अब ये सेट इस तरह की है कि आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू दैट ऑफ द एंड यू मस्ट बी हैविंग रिटेंटिव मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी रिटेंटिव है देन यू कैन डू इट, ठीक है। अब शुरू में वो कहता है सिगमंड फ्रॉयड ए पायनियर, इज दैट क्लियर? दोबारा आई वुड लाइक टू रिपीट, सिगमंड फ्रॉयड ए पायनियर। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, आप सुने गौर से। 23 में he is of the opinion that Australian born neurologist founded the practice of psychoanalysis and began। अब ये began जो है, ये 4 ऑप्शन है, विच शुड बी अवर आंसर। आपने देखना कि हमारा आंसर कौन सा है, यानी 23 हम कर रहे हैं। पहला है नो चेंज, दूसरा है कंटिन्यूड और तीसरा है स्पीयर हेडेड और चौथा है डी लेड। मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि सिगमंड फ्रॉयड ने जब के बारे में जब दूसरी लाइन में कहा गया ए पायनियर, ठीक है, तो हिज आंसर इज सी। आवर आंसर इज सी स्पीयर हेडेड मीन लीडिंग फोर्स और इन अदर वर्ड पायनियर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं और आगे है 24। इज दैट क्लियर? 24 सिंस हिज कैरियर, इज दैट क्लियर? ये देखते जाए, सिंस हिज कैरियर, हम 24 कर रहे हैं। कैरियर विच एंडेड इन द मिड 20th सेंचुरी, ठीक है, कॉमा फ्रॉयड has remained a common cultural and scientific reference point। So ये हमारा क्वेश्चन है 24। तो आपने आप करना है 24 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन 24 की, पहला है नो चेंज, इज दैट क्लियर? दूसरा है B, since his career, which ended in the mid 20th century, Freud has remained। ये B ऑप्शन है और हम अब आप आएंगे since C की तरफ। Since his career ending in the mid 20th century, semicolon, Freud has remained। और डी है सिंस हिज कैरियर एंडिंग इन द मिड 20th सेंचुरी, ठीक है, कॉमा क्लोज, फ्रॉयड हैज रिमेन्ड। अब 4 ऑप्शन है हमारी। अब हमने देखना कि हमारा 4 ऑप्शन में आंसर कौन सा है। हमारा फिर आंसर बनेगा बी, सिंस हिज कैरियर, कॉमा विच एंडेड इन द मिड 20th सेंचुरी, Freud has remained। So B is our answer। Now the question arises, why B is our answer? Because it makes it clear to the reader that his extra information modifying the word carrier। Again I would like to repeat, जिन स्टूडेंट को मैंने पहले मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर का रूल समझाया है, उनको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर का रूल अप्लाई होगा इधर। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, इट मेक्स क्लियर टू द रीडर दैट दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज ट्राइंग टू मॉडिफाई द वर्ड कैरियर। सो दैट्स वाई अवर आंसर इज बी। सो बी इज अवर आंसर, सी और डी हमारा आंसर नहीं, ना ए आंसर है। तो चले फिर हम थोड़ा सा, आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। अब ये हम अगले की तरफ आ रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? हम अगला आप डिस्कस करेंगे। तो आप गौर से देखिएगा, हमारा जो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 25।
इज दैट क्लियर? 25। मैं ज़रा बॉल पेन पकड़ लूँ ताकि आपके लिए आपको मोर फैसिलिटेट मैं कर दूँ, आप मोर फैसिलिटेट हो जाएंगे। तो अब मैं देखता हूँ, आप देखिएगा अगला है अ, अगला है ये देखिएगा, मैं पहले पढ़ता हूँ, आप बहुत से देखिएगा। वी आर डूइंग 25 हम कर रहे हैं। अब गौर से देखिएगा, इवन द अबाइडिंग पॉपुलैरिटी ऑफ टर्म्स सच एज इड, ईगो और टॉकिंग। इज दैट क्लियर? अबाउट ए फ्रॉइडियन स्लिप, ठीक हो गया, ये अंडरलाइन है। अब मैं आगे पढ़ लेता हूँ। सर्व्स टू indicate how this psychologist linger powerfully in Western memory। तो ये हमारा 25 आंसर है, क्वेश्चन है। तो अब हम आएंगे इस तरफ। मैंने याद आपको होगा कि मैंने आप जो अर्लियर लेक्चर दिए थे उनमें पैरेलल स्ट्रक्चर का मैंने एक रूल आपको समझाया था, ये रूल वही अप्लाई होगा, ठीक है। अब मेरे जितने भी मैंने पहले लेक्चर दिए हैं उनमें मेरी तकरीबन सारी ग्रामर है उसमें। अगर आप उस ग्रामर को फॉलो करेंगे तो आपके लिए CSS या सेट 1 या जो भी कोई इम्तहान है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं। पहला आप बोलते हैं ए, नो चेंज हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। और बी अब हम देखते हैं, इवन द अबाइडिंग पॉपुलैरिटी ऑफ टर्म्स such as the id, ego और a Freudian slip, ठीक है, ये हमारा बी आ गया। अब हम आते हैं सी की तरफ। Even the abiding popularity of terms such as talking about an id, ego और Freudian slip। और हमारा अब चौथा आंसर डी, ठीक है, हम डी करते हैं। अब देखिएगा डी में वो कहता है, इवन द अबाइडिंग पॉपुलैरिटी ऑफ टर्म्स सच एज इड, ईगो और फ्रॉडियन स्लिप। अब ये जो है डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। क्यों? उसकी वजह ये है, ये इड जो है इज ए नाउन, इज दैट क्लियर? और ईगो इज आल्सो ए नाउन और फ्रॉडियन स्लिप is also a noun. When we are trying to give a noun thrice, 3 दफ़ा जब हम noun को complicate करेंगे तो it become parallel structure. So this is our answer. Parallel structure is our answer. Is that clear? यानी मैं I would like to repeat once again, D is our answer because it tried to follow the rule of parallel structure. और पैरेलल स्ट्रक्चर में आप देखें ये नाउन आया, इड इज़ अ नाउन, ईगो इज़ अ नाउन और फ्रॉडियन स्लिप इज़ आल्सो ए नाउन। अगर ये तीनों नाउन आए हैं लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। अब आप देखिएगा ये आप कई कहते हैं जी ये सी क्यों नहीं है, बेटे सी इसलिए नहीं है, एज टॉकिंग इज़ नॉट ए पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। और अगला जो है मिसाल के तौर पर अगला जो है एज दी, तो ये गलत है। लिहाजा पैरेलल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है, रूल ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर जो मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा दिया हुआ है। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बिकॉज ही इज नाउ वाइडली referred to as the father of psychologists. Is that clear? Freud was among the first to develop the now commonplace psychological method of inviting patients to freely speak. ये है हमारा अंडरलाइन, ठीक हो गया, ये हमने इसको अंडरलाइन किया। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन कौन सी हैं? 4। पहला 26 नो चेंज,
दूसरा है वाइडली रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, Freud was among the first to develop the now commonplace psychological method of inviting patient to freely speak. तो बी है, बी। और सी जो है, सी भी अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। फ्राइड वाज अमंग, ठीक है, द फर्स्ट टू develop the now commonplace psychological method of inviting patient to freely speak, which is why he is now widely remembered as the father of psychoanalysis, ठीक है। और अगला डी है आल्दो। ये आल्दो तो बिल्कुल गलत है, तो हम फिर आप आएंगे। तो विच शुड बी योर आंसर? योर आंसर इज वाइडली रिमेंबर। बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। इसमें आपने यू शुड ट्राई टू नोटिस दैट द अंडरलाइन सेंटेंस इज द अंडरलाइन सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैरा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है द बेस्ट टॉपिक सेंटेंस, इट्स अ बेस्ट टॉपिक सेंटेंस और कंटेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है फ्री स्पीकिंग टेक्निक। आई मीन द राइटर हैज़ अडॉप्टेड द फ्री स्पीकिंग टेक्निक एंड दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आई मीन दैट वाज बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और अगला हम फिर करेंगे 27। अब हम आ जाएंगे 27 की तरफ, ठीक है। ये देखिएगा, ये 27 जो है ये इधर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ पहले आएंगे। ये क्वेश्चन है, ये उस कहता है एक्सेस टू डीप पार्ट्स डी 27 ऑफ द माइंड। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन सी है? पहला 27 नो चेंज, दूसरा है बी रिसेस, और तीसरा है सी प्लेसेस, और चौथा है डी कंपोनेंट। अब हमारा जो आंसर बनेगा रिसेस मीन वोकेशन, रेस्ट और कंफर्टेबल थिंग लाइक दैट। सो हमारा आंसर फिर बनेगा बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। तो चले अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मसला होगा आपको, अब ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चले फिर अगला करते हैं 28। इज दैट क्लियर? अब 28 की तरफ आप आएंगे तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। एक बात मैं फिर रिपीट कर दूँ कि जो सेट 1 कर रहे हैं, ये पहले जो सेट थी और इसमें सेट में ये फ़र्क है कि यहाँ से आपने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड एक एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ये रेडिविटेड होनी चाहिए आपके माइंड में। अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। ही इन्वाइटेड द अनकवरिंग रिप्रेस्ड मेथड कॉमा वाज नेसेसरी फॉर रिकवरी। सो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नो चेंज, दूसरा है ही बिलीव्ड दैट अनकवरिंग रिप्रेस्ड, ठीक हो गया। ये अगला है मेमोरीज कॉमा बीइंग नेसेसरी फॉर रिकवरी। इज दैट क्लियर? और सी जो है he believed that uncovering repressed memories was necessary for recovery। तो अगला है डी। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर बड़ा सिंपल और सादा है और सीधा सीधा है। चले फिर भी मैं कर लेता हूँ डी। he believed that uncovering comma repressed memories was necessary for recovery। अब 4 ऑप्शन थी। अब हम आएंगे अपने आंसर ही की तरफ। आंसर फिर हमारा बनेगा सी
C is our answer. C should be our answer. He believed, he believed that uncovering repressed memories was necessary for recovery. ठीक है, अब इसमें क्या है 28C में क्या है, he tried to eliminate the unneeded comma. When we use that is a comma, it means we try to mark the beauty of that of the passage. तो जो अननीडेड कॉमा है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो सीधी सीधी बात ये है हमारा सी आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 29। मैं 29 की तरफ आता हूँ, गौर से देखिएगा। इन डीलिंग विद द कंडीशंस ऑफ पेशेंट कॉमा like neurosis or other psychological trauma, comma, he suspected that। ये है अब हमारा आंसर, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमने आना है 29 की तरफ। पहला इसी तरह जो भी हम जब चार ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला होता है नो चेंज, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैं अगर कहते तो मैं पढ़ देता हूँ, आप गौर से देखिएगा। इसमें अब मसला क्या है, अब गौर से देखना आपने, ये गौर से देखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ग्रामेटिकली इट ट्राई टू गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर ग्रामर को कम से कम आप समझ जाएंगे, और फिर आपको ना सेट में प्रॉब्लम होगी, ना CSS में होगी, ना MCAT में होगी, ना ECAT में होगी। ठीक है, तो चले मैं करता हूँ। ये है पहला ए नो चेंज, दूसरा है इन डीलिंग विद पेशेंट कंडीशंस कॉमा लाइक न्यूरोसिस और अदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही सस्पेक्टेड दैट। ठीक हो गया। और दूसरा सी इन डीलिंग विद पेशेंट in dealing with patient the neurosis or other psychological trauma condition he suspected that। ठीक है, अब अगला है डी पर अब हम आ गए। he suspected that comma in dealing with patients conditions like neurosis or other psychological trauma। अब चार ऑप्शंस हैं हमारी, तो चले वी शुड ट्राई टू फोकस विच शुड बी अवर आंसर, विच शुड बी। हाँ बेटे आपने क्या कहा, मैं आपको समझाता हूँ। न्यूरोसिस का मतलब होता है न्यूरोसिस मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, इज दैट क्लियर। और ट्रॉमा है बॉडीली मेंटल इंजरी एंड थिंग लाइक दैट। ठीक हो गया, तो चले फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, 29 हम कर रहे हैं, 29। ठीक, 29 को हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मसला क्या है, वो भी मॉडिफाइड का मसला आ गया जो मैंने पहले बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है। हमारा आंसर फिर बनेगा बी इज अवर आंसर। मैं अभी समझाता हूँ कि इसमें मसला क्या है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट मॉडिफायर शुड बी एडजस्टेड टू द नाउन इट इज़ मॉडिफाइंग। इज दैट क्लियर? सेट ऑफ द पंक्चुएशन, यानी वहाँ पर ये मॉडिफायर लगाएंगे जहाँ पर ये ईजिली उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट वी शुड ट्राई टू मॉडिफाई और एडजस्ट टू द नाउन इट इज टाइम टू मॉडिफाई एंड सेट ऑफ द कॉमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम आएंगे बी पर। बी हमारा आंसर है इन डीलिंग विद पेशेंट्स, इज दैट क्लियर, conditions comma like neurosis or other psychological trauma he suspected that। अब इसमें मसला क्या आ गया है, यानी मॉडिफायर का रूल है जो मैं पहले भी बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ। हमने मॉडिफायर को वहाँ पर देना है जो जहाँ पर ईजीली हम उसको कम्युनिकेट कर सकें, यानी मॉडिफायर शुड बी एडजस्टेड, शुड बी प्लेस्ड टू द नाउन इट ट्राई टू मॉडिफाई। अब यहाँ पर क्या है मसला 29 पर। अब देखें 29 पर वो कहता है इन डीलिंग विद पेशेंट कंडीशंस लाइक न्यूरोसिस इज अ नाउन इट ट्राई टू मॉडिफाई
I mean the rest of the thing. Is that clear? Or either psychological trauma is also noun, and the thing rest of the thing is trying to modify these noun. So B is our answer. B should be our answer. और अगला है, एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा समझा दूँ इसी के बारे में। यदि मॉडिफाइड जो लाइक है या न्यूरोसिस है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है should be come directly after the condition. Again I am of the opinion, again I would like to repeat, I mean out of this thing, हमारा आंसर बनेगा बी। और इसमें याद रखिएगा, मैं आई वुड लाइक टू क्लियर यू द मॉडिफायर, इज दैट क्लियर? गौर से सुनिएगा। द मॉडिफायर लाइक न्यूरोसिस, मिसाल के तौर पर न्यूरोसिस इज अ नाउन, और अदर साइकोलॉजिकल इज अ नाउन, ट्रॉमा इज अ नाउन, शुड कम डायरेक्टली आफ्टर कंडीशन। ठीक हो गया? तो फिर हमारा आंसर बनेगा बी। बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। तो चले हम आगे चलते हैं। थोड़ी मसला आपको होगा लेकिन ये मसला ख़त्म। इज दैट क्लियर? तो चले हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है? और अगला क्या है? अगला क्या है? यानी ये इसमें एक नई चीज़ आई है जो आपने देखनी है। और अनकॉन्शियस, मोर ओवर कॉमा, द मेथड ऑफ इन्वाइटिंग पेशेंट टू स्पीक and process their thought aloud remains central to today's psychological practice. अब वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, विच डिटेल वुड प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट फॉर द आइडिया प्रेजेंटेड इन दिस सेक्शन। ठीक है? अब गौर से दोबारा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, आपको इस तरह भी इसका आंसर देना है। यानी ये जो 2016 से पहले की जो सेट थी और जो आज सेट है उसमें फ़र्क है। अब ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, विच डिटेल वुड प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट फॉर द आइडिया प्रेजेंटेड इन द सेक्शन। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी डिटेल है जो हमें सपोर्ट हम पहुँचाती है टू प्रेजेंट दिस सेक्शन। ठीक हो गया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन क्या है मैं पढ़ दूँ, आप गौर से सुनिएगा। एट द सेम टाइम द फ्रॉइड प्रैक्टिस कॉमा मैनी पीपल वर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिज्म। ठीक? नंबर बी, फ्रॉइड lived and worked mostly in London, although he, ये भी इसका आंसर नहीं है। सिंपल इज दैट, बड़ा सिंपल है। आपको आपका टाइम मैंने बचाया है। अब हमारा आंसर फिर बनेगा सी इज आवर आंसर। वाइल सम ऑफ फ्रॉइड्स मोर unusual practice have been criticized or abandoned, comma, his interest in the unconscious already, is that clear, already trajectory of the field। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, एक गौर से सुनिएगा। इसका आंसर बनेगा सी। क्यों बनेगा? क्योंकि दिस सेक्शन ट्राई टू डिस्कस द डेवलपमेंट एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रायर्स आइडिया। और अगर आप सी को देखें तो ही ट्राई टू कम्युनिकेट दिस फिलॉसफी। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन, में गौर से सुनिएगा। सी हमारा आंसर क्यों है? सी हमारा आंसर इसलिए है कि इस सेक्शन में द राइटर इज ट्राइंग टू डिस्कस द डेवलपमेंट एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रायर्स आइडिया। सो इफ यू ट्राई टू एनालाइज सी, you will find that he tried to discuss lasting influence and that of the Freud's influence of idea and things like that. So C हमारा आंसर है। अब हम आते हैं 31 की तरफ। 31 की तरफ 31 है ए नो चेंज। ठीक है? अब बी आप देखिएगा। बी still vastly mysterious human mind, comma, full stop, before Freud medicine। ठीक हो गया? ये 31 है। ये बेटे है रन ऑन सेंटेंस।
अगर आपको ग्रामर आती है तो यू शुड नो व्हाट इज रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस में यह है कि वी शुड ट्राई टू गिव आई मीन दैट ऑफ ए full stop if we want to make the sentence beautiful and correct according to the grammar। तो हमारा फिर आंसर बनेगा भाई जी, हम कौन सा कर रहे हैं, 31। इज दैट क्लियर? हमने 30 कर लिया है, अब हम कर रहे हैं 31। ठीक है, तो हमारा आंसर फिर बनेगा 31 का आंसर बनेगा स्टिल वास्टली मिस्टीरियस ह्यूमन माइंड। फुल स्टॉप दे दिया ना उसने, ठीक हो गया। ये रन ऑन सेंटेंस है बिफोर फ्राई कॉमा मेडिसन। सो इसमें भी नहीं वो चीज़, इसमें भी वो चीज़ नहीं है, और इसने वो चीज़ दे दी है जिसकी हमें ज़रूरत है। दैट इज़ द इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट द रूल है रन ऑन सेंटेंस। When we try to deviate run on sentence, then definitely we try to create problem. So grammatically sentence become correct if you try to follow the run on sentence। run on sentence जो है ये आपने खूबसूरती से फुल स्टॉप दे दिया और फिर दूसरा सेंटेंस जारी कर दिया। तो 31 इज अवर आंसर। नाउ हम आगे चलते हैं 32 की तरफ। वी मूव टूवर्ड्स 32। इज दैट क्लियर? अब 32 में 4 ऑप्शन है। पहला है नो चेंज, थ्रू, अब बी थ्रू ट्रायल एंड एरर, साइंटिफिक मेथड इन एक्शन, फ्रायर्स माइंड फाइंडिंग ए मेथड दैट सीम टू वर्क। ठीक हो गया। अब सी है थ्रू ट्रायल एंड एरर, साइंटिफिक मेथड इन एक्शन, फ्रायड फाइंड्स ए method that seem to work। ठीक हो गया। अब डी थ्रू ट्रायल एंड एरर, साइंटिफिक मेथड इन एक्शन, फ्राइड फाउंड ए मेथड दैट सीम टू वर्क। अब इसमें मसला क्या है? अब हमारा, पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या है, बाकी का डिस्कस करना यूजलेस है। तो चलें फिर हम करते हैं। डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। वो कहता है थ्रू ट्रायल एंड एरर, साइंटिफिक मेथड इन एक्शन, Freud found a method that seemed to work। अब इसमें यह है कि इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज Freud's finding of a method, to Freud found a method making sentence clear, then we should try to make the sentence clear। The method of Freud is found clear। Is that clear? तो डी इज और आंसर। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला फिर आंसर होगा, सॉरी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है। चले अब हम आगे आ गए। ये है, तो चले फिर हम अगला करते हैं। अब गौर से देखिएगा, अगला ये है 33। और आप लोग कहते हैं तो मैं सीधा 33 पर आ जाता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो कहते हैं जी नहीं। तो फिर हम चलते हैं। सिंस देन कॉमा डिकेड्स ऑफ एवर शार्पनिंग, साइंस हैव यूज्ड हिज वर्क एज ए लॉन्चिंग पैड, देयरफॉर एज लॉन्ग एज ओकेजन अराइज टू सेलिब्रेट दी प्रोग्रेस। अब ये हमारा आंसर 33 क्वेश्चन है। अब आपने आंसर इसका देना है। दी फील कॉमा सिगमंड फ्रायड विल बी रिमेंबर्ड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स दैट अनेबल्ड वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, पहला है नो चेंज, दूसरा है बी, सी, डी। अब मैं आंसर की तरफ आऊँगा। अब इसमें मसला क्या है? अब सुने ज़रा। अगर आपको पहले मैं मेरे जो लेक्चर है जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि द रोल ऑफ ए सेमीकोलन और द रोल ऑफ ए सेमीकोलन एंड कॉमा। अब इसमें क्या है?
33 में क्या है? In this context, I would like to say one thing. Although this lengthy dependent clause जो lengthy है, मैं आपको समझाऊंगा lengthy dependent clause क्या होती है. इन द सन ओके, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो लेंथी है, लेकिन द राइटर ट्राई टू करेक्टली कंबाइन विद इट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मसला है. यानी अगर हम इसको गौर से देखें, गो के डिपेंडेंट क्लॉज लेंथी है दिस वन ये, लेकिन उसने इंडिपेंडेंट क्लॉज को बड़े खूबसूरती से कॉमा से इसको ज्वाइन किया है. तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए इज़ अवर आंसर. इट शुड बी अवर आंसर. अब देखिएगा, मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर गौर से सुनिएगा. सिंस देन decades of ever sharpening science have used his work as a launching pad. Therefore, as long as occasions arise to celebrate the progress of, ठीक है, the field Sigmund Freud will be remembered for groundbreaking work that enable वगैरह. So over here he tried to communicate one thing, that is the combination of independent and dependent clause. अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे आते हैं, और वो है 34 की तरफ हम आएंगे. यह है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन substances that deplete the ozone layer is an international treaty that was created to ensure that steps would be taken to reverse damage to Earth's ozone layer. And अब यह preventing future damage, it was alleged. पहले हम 34 ही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. 34 हम कर रहे हैं. 34 पहला है नो चेंज, दूसरा है बी टू प्रिवेंट, तीसरा है सी टू प्रिवेंटेड, और चौथा है डी वाज प्रिवेंटिंग. ठीक है, अब ये भाई पैरेलल स्ट्रक्चर है. अब आप आए 34 की तरफ, दोबारा 34 की तरफ. अब ऊपर चले, ये देखें, वो कहता टू इंश्योर. ठीक हो गया. अब वो क्या कहता है आगे चलकर, वो कहता है, फिर कहता है टू रिकवर. यानी मैं दोबारा बोलता हूँ, टू इंश्योर, टू रिकवर. अब इसमें यहाँ पर आना चाहिए टू प्रिवेंट, इन ऑर्डर टू फॉलो द पैरेलल स्ट्रक्चर. ये पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लिहाजा हमारा आंसर भी बनेगा बी. अब हम आगे चलते हैं 35. अब वो क्या क्वेश्चन हमसे कर रहा है, विच चॉइस मोस्ट इफेक्टिवली कंबाइन द सेंटेंस इन द अंडरलाइन पोर्शन. ठीक हो गया. अब हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहली है साइंड इन 1987 कॉमा दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है. बी because it was signed in 1987 comma this document. और अगला है सी, it was signed in 1987 comma and this document. और डी, it was signed in 1987 so this document. अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन. अब हमने एक ग्रामर की एक और भी रूल है कि यू शुड बी concise, pithy and limited in our writing. अब एक चीज़ जो हम 20 वर्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही अगर हम 7-8 वर्ड में कम्युनिकेट करेंगे, ग्रामेटिकली सही करेंगे, तो वो सही होती है. लिहाजा इसमें भी वही आंसर है. तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए साइन इन 1987 कॉमा दिस डॉक्यूमेंट.
और बाकी जो बिकॉज इट वाज साइंड इन 90 वगैरह वगैरह, और फिर सी में भी उसने लेंथ ही कर दिया और बी डी में भी, तो ब्यूटिफुली ही ट्राई टू स्किप ऑफ आई मीन आउट ऑफ द अननेसेसरी थिंग। तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए, बिकॉज दिस ऑप्शन ज्वाइन द सेंटेंस कंसाइसली एंड करेक्टली। सो हमारा आंसर भी बनेगा ए। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, अगला है हमारा मैं अब जो ये जो है ये अब हम आखिरी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको हो गया। और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ ही स्टॉप करूँगा। 36 पर ये मेरा आखिरी होगा। वैसे तो आगे है काफ़ी सारा, लेकिन आपको काफ़ी आइडिया समझ आ, ग्रामर हमने डिस्कस कर ली है। तो चलें फिर हम आखिरी करते हैं। ए होल इन Earth's ozone layer was discovered over Antarctica, ठीक है, as long as 2 years prior। ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नो चेंज, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग अगो कॉमा 2 years प्रायर, और अगला है सी 2 years प्रायर, और डी ईयर प्रायर। अगर आपने जो हम पहला क्वेश्चन किया है, ये भी उसी की एक कड़ी है। आई मीन द राइटर इज ट्राइंग टू यूज फ्यूएस्ट वर्ड्स, द राइटर इज ट्राइंग टू यूज वेरी फ्यू वर्ड्स विच आर वेरी नेसेसरी टू कवर द कंप्लीट मीनिंग, ठीक हो गया। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा, the writer tried to discuss the most concise and effective way of stating the information which is complete। तो फिर ये हमारा आंसर बनेगा, सी इज़ अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। तो चले, अच्छा भाई मैं एक आखिरी भी कर लेता हूँ, आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। ये गौर से फिर आप देखिएगा। 37 ये कह रहे हैं कि 37 भी कर लें, ठीक हो गया। 37 है इंटरनेशनल, इधर क्लियर, इंटरनेशनल कन्वर्सेशन कॉमा द मैसिव होल, ये है इसका आंसर, ये है इसका क्वेश्चन। और अब जो हमने पहले एक रूल किया था, ये वो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर भी बनेगा सी, इंटरनेशनल कन्वर्सेशन फुल स्टॉप दी मैसिव रूल। और रन ऑन सेंटेंस जो हमने पहले डिस्कस किया था कि रन ऑन सेंटेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ऑफ द cumbersome difficulty and riddle, we should try to be very pithy and we should try to communicate run on sentence। और ये सी ने रन ऑन सेंटेंस रूल को फॉलो किया है, लिहाजा सी इज़ अवर आंसर, शी शुड बी अवर आंसर। अप टिल नाउ यहाँ तक ही। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि आई एम स्पीकिंग फ्राम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, और दूसरा है द सर्विसेज अकेडमी, और तीसरा है अलीम अकेडमी। हमारी ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट फ्राम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक हो गया। तो चलें बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट।